तुमने सारी समर वेकेशंस वेस्ट कर दी। अप्रैल मई जून जब से स्कूल्स शुरू हुए हैं क्लास 10th के लिए, वो सारा तुमने वेस्ट कर दिया। बैकलॉग्स इकट्ठे कर लिए, कुछ भी नहीं पढ़ा। और अब जुलाई आ जाएगा। उसके बाद तुम्हारे प्री बोर्ड्स वगैरह, प्री मिड एग्जाम्स, मिड टर्म, हाफ ईयरली, न जाने क्या क्या आ जाएगा, एनुअल डे वगैरह वगैरह। एंड यू आर थिंकिंग now it's over and I'm already late. So wait, where are you going? You have clicked on this video and I'll make sure you make the most of it. So let's get into this. And let me tell you one more thing about class 10th. Board exams especially. They are not at all hard. It has been made a hype of, but they are not really as it seems to be made by the society. When you closely break it down, you can see the syllabus is not huge, it's very, very small. The concepts are totally manageable, and the exam is in your hands, very predictable. Still, you feel stuck and confused. The problem is not at all your capability, just your carelessness, lack of direction, and sometimes ego as well. So don't skip this video because this might actually change how you approach your entire year. Hello everyone, this is Bhumika and welcome back to my channel. I have started this channel to share study tips for class 10th and to share other things that I feel worth sharing with the world. So, in today's video, we are going to talk about how to start class 10th from July, especially if you have backlogs and you are a backbencher. See, let's decode the left months in your board exams like a backbencher would do 11 hours before the exam starts. Like मेरे पास अभी 11 घंटे हैं, इसमें से इतने चैप्टर तो इतने घंटे में हो जाएंगे, तो अभी तो सो लेता हूँ. You have 3 to 4 months for strong and foundational preparation, 1 month for entire practice, and 1 to 2 months for revision. How much time, right? And I think that's more than enough. One day is also enough for you, I think. Let's keep the joke aside. So, for the first point, let's start. Take a pen and a paper and literally write it down with your hand. If you are lefty, write with left hand, but I usually write with right hand. So write what chapters you are done with. I think if you are not done with any, then do not write, and the chapters which are left. If you have entire syllabus left, then also write every chapter's name. Not the you do not write like whole syllabus. No, don't guess, don't make it in your mind, just pen it down. Because you cannot improve what you don't track. And what you don't track is not a target. And what is not a target is not chased, I think. Now, the main goal for your July roadmap must be to complete the maximum core part of your syllabus. The chapters which have the maximum weightage, the subjects you are weak at. Maximum possible completion should be done. But you would think, why? We have so much time left, so why? Because once your syllabus is done early, your confidence increases that you do not have right now. I know. Your stress also decreases. Revision becomes easy. You will feel motivated to read even more. And this is where most students go wrong. You were about to be, but I saved that. They delay and then panic later, but you won't. Okay, now let's make a daily plan because the foundation is the day. So, backlog clearing. I'm not saying 1 or 2 days for backlogs in a week, or in a month, give 1 or a half week for backlogs. Not at all. Do not waste like that, because if you are doing this, तुम्हें backlogs को तो याद रहेगा नहीं बिल्कुल भी, जो अभी चल रहा है उसको भी भूल जाओगे. So give 2 to 3 hours. Pick one subject and complete at least half or one chapter of your backlogs. And now,
the schoolwork, the homework and that कॉपी पेस्ट टाइप, उसको करा करो सोने से पहले, तब नींद में हो एकदम, मतलब कि बिल्कुल डिहाइड्रेट हो चुके हो, बिल्कुल ही एनर्जी ही नहीं बची, तब हेडफोन लगा के या गाने चला के कुछ भी डिस्ट्रैक्शन करके और just copy and paste, because that's literally of no use. Okay, and for that you can give maximum 1 hour, and you have to improve your writing speed to make the most of your time. And you do not say I do not have time or blah blah blah. These are excuses, bluntly saying they are. Now I said what you will do in the July. Practice. I think what I did. Okay. So when I said practice in this video, I mean the maths questions. And I literally meant maths when I say practice. Okay, but let's make it a broader in a broader sense. Maths questions, practice of course. उसमें maths में इसके अलावा है भी क्या? Science numericals, physics के, SST के आंसर राइटिंग कैसे करते हैं उस चीज की प्रैक्टिस, इंग्लिश में लेटर, एनालिटिकल पैराग्राफ वगैरह, और ग्रामर इफ योर ग्रामर इज वीक. ज्यादा सर पे मत चढ़ाना बेकार के सब्जेक्ट्स को, जैसे कि हिंदी या फिर ITI AI या फिर कंप्यूटर, लास्ट में हो जाएंगे आराम से, आई अश्योर यू. बट ये भी नहीं है कि ये भी नहीं पता कि चैप्टर्स कौन से हैं हिंदी में और एडिशनल सब्जेक्ट में. Don't do that, please. If you're watching this video, I am assuming that you want to score at least 90 plus or 95 plus, I think. Okay, now for the time you have left for your board exams, which you think are your whole life, which indeed they are not. Okay, for July. July is mostly to finish most of the syllabus, the core part, and clear backlogs that you had left in April, May, June, and you were chilling right there. ऐसे क्या देख रहे हो? You were chilling. I'm not wrong. Okay, now for August. Complete the remaining chapters, the most of the part you had done, and the remaining part you will do now, and start revision. मतलब कि 10-15 दिन में वो निपटा दो जो बचा हुआ था कोर पार्ट के अलावा जो, और उसके बाद रिवीजन स्टार्ट कर दो. जितना रिवाइज करोगे ना उतना यहाँ पे पेज में बैठ जाएगा. ओके, नाउ मूविंग ऑन टू सितंबर. एक बार फुल रिवीजन मार दो, मतलब कि ऐसे डिवाइड कर, मतलब कि नोट्स, मतलब कि अगर पढ़ रहे हो ना तो आई एम अज्यूमिंग कि नोट्स तो बना रहे होगे. पढ़ना मतलब पढ़ने के साथ साथ नोट्स बना, कंप्लीट किया है ना सिलेबस, तो मतलब कि उसको नोट्स बनाए हैं तब कंप्लीट कहा जाएगा. वो ऐसे ही नहीं कि बस हाँ रीड कर लिया, लेक्चर्स देख लिए, रैपिड रिवीजन देख लिया. द मोस्ट दीमक वी हैव इन जेनजी. पर ऑफ कोर्स अभी तक क्वेश्चंस कर रहे थे मैथ्स के, पर अब और चीजों के भी करने लग जाओ, जैसे कि हिंदी वगैरह. मतलब हाँ, मैं इसी को लास्ट कह रही थी. ओके, तो स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चंस, क्योंकि जितने ज्यादा क्वेश्चंस करोगे उतना ही ज्यादा घिस जाओगे, और घिस जाओगे तो अच्छा काम करोगे पेपर में. नाउ कमिंग टू अक्टूबर. और सच बताऊं ना तो ये महीना ऐसा होता है कि इफ यू डू स्टडी इन दिस, you will be more than ahead of other students that were ahead of you in this time that I am making the video. In the July month that you are thinking they are ahead, and if they started enjoying Diwali, Bhai Puja, Bhai Dooj, or Govardhan Puja, etc. festivals. October is full of festivals. उसको enjoy करने लगे, then you have many chances to win. So you can make the most of it. पहले ही बता दिया है, ताकि बैठ, पर ऐसा भी नहीं है कि सब दिवाली के पटाखे फोड़ रहे हैं और तुम बैठ के लगे हुए. Not like that. Class 10 does not need intense study. Anything does not need intense study, just consistency. Consistency over intensity. तो अक्टूबर में वैसे पढ़ना क्या है, स्ट्रैटेजी क्या है आपकी, तो उसके लिए मैं बता रही हूँ कि प्रैक्टिस करो. प्रैक्टिस ना हर महीने का है, और वीक एरियाज पे ध्यान दो.
वीक एरियाज या वीक सब्जेक्ट्स कह सकते हो। और ये तब तक पता चल ही जाएगा तुम्हें, क्योंकि क्वेश्चंस जो होंगे नहीं तुमसे उस पर तुम फ्रस्ट्रेट हो जाओगे एंड ऐसा करोगे ये मुझे क्यों नहीं होता, तो वही करना। ओके, अब नवंबर पे आते हैं। थोड़ी बहुत कभी कभी दिवाली इसमें भी आ जाती है, सो बी केयरफुल। तो इसमें करना मेनली PYQs। और ये जो मैं बता रही हूँ ना, इसके पीछे लॉजिक है। ये बड़ी हो जाएगी वीडियो, इसलिए नहीं बता रही, बट इसके पीछे लॉजिक है कि नवंबर में ही क्यों PYQ करने हैं, उसमें ही क्यों प्रैक्टिस करनी है। ऐसे तो मैं बोल दूं कि अभी कर लो सैंपल पेपर्स, बट वो अलग बात है कि अभी सैंपल पेपर से रिलीज भी नहीं होंगे, और वो बेवकूफी होगी कि तुम पिछले साल के सैंपल पेपर्स करें, क्योंकि इस साल का पैटर्न विल बी रिलीज्ड इन जुलाई और अगस्त बाय CBSE। ऑफिशियल अनाउंसमेंट जो मैं सैंपल पेपर का कह रही थी वो करना दिसंबर और जनवरी में। इतने सैंपल पेपर करना, इतने सैंपल पेपर करना कि सैंपल पेपर ही कम पड़ जाएं, जैसे मेरे केस में पड़े थे। मतलब कि ऐसा करना कि एक दिन पहले सैंपल पेपर खत्म हो गए और मैं लेके आई थी मैथ्स 1 day बिफोर माय मैथ्स एग्जाम। मैथ्स बोर्ड एग्जाम, फर्स्ट बोर्ड एग्जाम। I was literally in the market and I was taking Oswald के सैंपल पेपर्स देयर, बिकॉज मेरे एडुकार्ट के और PW के सैंपल पेपर्स फिनिश हो गए थे। और तुम गेस करो, अगले दिन पेपर था तो मैं कितने कर पाई होंगी? एक मुश्किल से हुआ, वैसे तो मेरे को मैथ्स तो पसंद है नहीं, तो एक ही हुआ, पर कोई नहीं, करने का मन तो था, तो फिर इच्छा थी तो मार्केट चली गई। दैट आई थिंक वॉज अ रियली गुड डिसीजन। और अब चेक करते रहना, क्योंकि जुलाई शुरू होते ही कभी भी ऑफिशियल सैंपल पेपर अनाउंसमेंट आ सकता है कि ऑफिशियल सैंपल पेपर फॉर 2026-27 के बोर्ड एग्जाम्स, ऐसे ऑफिशियल अनाउंसमेंट होगी बिल्कुल चुपचाप। बट चुपचाप तो CBSE करता है, यूट्यूब पे तो सब कुछ आ जाता है। सो तब रिलीज हो तो उस जो है ना सैंपल पेपर, उसको टाइमर के साथ सोल्व करना। तो अभी जल्दी सिलेबस मत करना, मतलब कि अभी वो सैंपल पेपर अगर आ जाएगा ना ऑफिशियल वाला, तो प्लीज डू नॉट टच इट, प्लीज डू नॉट इवन सी इट। बस ऐसे वीडियो देख लेना कि, या फिर मेरा ही वीडियो देख लेना, या फिर किसी का यूट्यूब वीडियो देख लेना कि कैसा पैटर्न है, क्योंकि और सैंपल पेपर रिलीज हो जाएंगे तो उस हिसाब से तुम पढ़ सकते हो। बस पैटर्न देखना, क्वेश्चंस मत देखना उस ऑफिशियल सैंपल पेपर के, क्योंकि वो ऑफिशियल सैंपल पेपर सिर्फ द ओनली वन आएगा, तो उसको बचा के रखो तब के लिए, तब तुम्हारा सारा सिलेबस हो गया और अब तुम सैंपल पेपर के लिए फुल रेडी हो। तो वो पहला सैंपल पेपर वो ही देना तुम, ताकि तब तुम्हारा पता चलेगा कि बोर्ड एग्जाम में कितने नंबर आएंगे असली में तुम्हारे अभी के लिए। ऑफ कोर्स उसके बाद जो टाइम है तुम इम्प्रूव कर लोगे। बिल्कुल रियल एग्जाम की सेटिंग में बैठना, 3 आवर का टाइमर लगा के, 15 मिनट का रीडिंग टाइम लगा के, और उसके बाद बिल्कुल स्ट्रिक्ट, जैसे खड़ूस होता है ना, सबसे खड़ूस टीचर, वैसे चेक करना। और उसके बाद जो मिस्टेक्स निकले उस चैप्टर्स को फिर से रिवाइज कर लेना, फिर से अपने रिवीजन पे। गुड लक। अब तुम सोचोगे मैं ये करता ही क्यों हूं, वाई डू आई रियली डू दिस, व्हाट्स द रूट कॉज? सो इसका रूट कॉज मैं बता देती हूँ, केयरलेसनेस और ईगो है। शायद मैंने पहले बता दिया, पर कोई नहीं, फिर से बता देती हूँ, एक्सप्लेन कर देती हूँ। केयरलेसनेस है कि सब कह रहे हैं, मतलब कि और वीडियो भी देख के आए होगे, और हाँ ये बात है कि क्लास 10th इजी है, और तुम सुन के भी आए हो कि क्लास 10th इजी है, हो जाता है, एंड व्हाट नॉट, ब्ला ब्ला ब्ला। तो वो सब तो कहते रहेंगे, बट मैं बता दूं कि ये है इजी, बट अगर केयरलेस होगे ना तो है तुम्हारे लिए UPSC से भी टफ, या फिर जो भी, जिसको भी तुम बुरा सपना मानते हो उससे भी टफ। हाँ है, और हो सकती है ये लास्ट के मंथ्स में, पर कम से कम 3 महीने तो लगेंगे लास्ट के। अब अगर तुम सोच रहे हो 1 महीना अगर जनवरी से शुरू होगा मैं या दिसंबर से शुरू होगा, अटके रहना 80-85% पे। इस वीडियो को फिर मत देखो, बिकॉज दिस इज फॉर 90+ एंड 95+, बट देख लोगे तो क्या ही चला जाएगा, देख लो। ओके, दैट वॉज प्रिटी मच फॉर दिस वीडियो। I'll see you in the next one. Till then, take care. Good luck for all you have ahead. And if you like this video, do not forget to like, share, and subscribe to With Bhumi.
for more study tips for class 10th. Realistic study tips. Bye.